Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of May 2021, Friday. Inspiration of the day is when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. States half borrowing as COVID wreaks havoc. As we all know, the second wave of COVID-19 pandemic has turned out to be far more disastrous than the first wave. And the cases are continuously increasing into few states, and because of this devastating impact, states are now going slow for their market fundraising process. और अगर डेटा की हम बात करें तो स्टेट बोरोइंग को अगर कंपेयर करें पिछले लास्ट ईयर की स्टेट बोरोइंग से, टोटल स्टेट बोरोइंग से, तो इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में अभी तक जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग हुई है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 54% तक कम है. एंड only 12 state and one union territory, one UT, have raised a total of 37,200 crore so far in financial year 22. और पिछले साल यही डेटा अप्रॉक्सीमेटली 22 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरीज ने अभी तक 81,000 करोड़ तक का फंड रेज किया था इनटू फाइनेंशियल ईयर 21. तो हम ये कह सकते हैं करीब आधे स्टेट्स ने फंड रेजिंग प्रोसेस एक्सरसाइज करी है और वो भी आधे अमाउंट का, अप्रॉक्सीमेट, और आधे से भी कम अमाउंट का. एंड अकॉर्डिंग टू द बोरोइंग कैलेंडर 23 स्टेट्स एंड 1 यूटीज वर to raise approximately 81,900 crore for this period, but the fundraising process is barely 45% of the amount. और इसका अगर हम एक सीधा कॉज देखें, व्हाट इज़ द सिंपल कॉज, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग सारे स्टेट्स इंडिया में. तो अभी उनका जो पूरा फोकस है वो कोविड-19 या कोरोना को कम करने की तरफ है. जो अदर प्रोजेक्ट्स थे स्टेट गवर्नमेंट के जिसमें फंडिंग होनी थी वो प्रोजेक्ट्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए हैं. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वंस द पैंडेमिक सबसाइड they will launch or they will bunch up their issuance and will create a lot of stress in the market then. तो अभी तो सारे स्टेट्स कोविड-19 के तरफ फोकस है उनका इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, बट जैसे ही पैंडेमिक कम होगी सडनली सारे स्टेट्स ही जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर उन्होंने प्लान कर रखा था उसके लिए फंड रेजिंग पर जाएंगे और इमीडिएटली कलेक्टिवली अगर इतने सारे स्टेट एक बार में एक टाइम पीरियड में फंड रेजिंग की प्रोसेस में जाएंगे तो दिस पर्टिकुलर event will create a lot of stress in the market and that may further lead to increase in interest rate as per the experts. और कोविड-19 के अलावा अगर हम अदर रीजंस की बात करें वाई स्टेट्स आर गोइंग सो स्लो on tapping the bond market, that could also be because of the RBI's intervention. So the reason for state going slow on tapping the bond market could also lie in the Reserve Bank of India's accommodation to them. And because of all these reasons, the spread yield of state development loan, that is SDL, जिसके फॉर्म में जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स लोन लेती हैं, आपको पता होगा SDL, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली ये SDLs होते क्या हैं? SDLs in general called as state development loans are the dated securities issued by different state governments for meeting their market borrowings requirement, just like government securities. Central government G securities issue करते हैं, इसी तरह state government SDL issue करते हैं. In effect, SDLs are similar to the dated securities issued by central government. And same, the purpose of issuing the state development loan is to meet the budgetary need of the state government, and each state government can borrow as much as they have set limit for themselves. In minded student, the SDL securities issued by state are credible collateral for meeting out the SLR requirements of the bank, just like government security, and as well collateral for availing the liquidity under RBI's LAF, including the repo. So they just work like the central government G securities. And one of the very remarkable or important feature of SDL is that it is a market oriented instrument for state to mobilize the fund from open market.
और अगर ओपन मार्केट से फंड रेस कर रही है स्टेट गवर्नमेंट तो सीधा सा लॉजिक यहाँ पर ये लगता है जितनी अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी जिस भी स्टेट गवर्नमेंट की, जनरली उसको उतना लोअर इंटरेस्ट रेट या यील्ड रेट पे करना पड़ता है एसडीएल बोरोइंग्स पे। जनरली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो दे विल बी रेडी टू गिव द लोन और दे विल बी रेडी टू बाय द एसडीएल पेपर्स ऑन अ वेरी low interest rate and there will be low yield rate as well. And definitely RBI facilitate the issue of state development loan securities just like G securities for center government. तो RBI एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है SGLs को इशू करने के लिए। और इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं आपको बताऊँ तो RBI के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के SDL होते हैं उनकी रीपेमेंट करने की भी पावर होती है। इट मीन्स RBI हैज़ द पावर टू मेक द रीपेमेंट टू SDL आउट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट एलोकेशन टू स्टेट्स। तो सेंटर गवर्नमेंट के एलोकेशन को डिस्बर्स करने के लिए अगर RBI चाहे तो SDL के फॉर्म में भी पे कर सकते हैं स्टेट्स को। तो अब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी ट्रेडिंग कैसे होती है, कहाँ से बाय होते हैं। दैट्स वी विल डिस्कस in separate video some other time. So because of this the spread yield of state development loans over equivalent maturity government securities are about 80 basis point for the 10-year segment. And this is all because of the low borrowings for state governments or low borrowings by state government at this pandemic. और अगर नॉर्मल टाइम की बात करें तो नॉर्मल टाइम में यही स्प्रेड 50 to 60 बेसिस पॉइंट रहता है जो कि अभी 80 बेसिस पॉइंट तक पहुंच गया है। पर अभी के लिए मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा दिस पर्टिकुलर न्यूज़ लुक्स गुड बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर फिनोमिना क्योंकि जब इमीडिएटली स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग पर आएंगी देन इट विल बी डिस्टॉर्टिंग द मार्केट एंड दिस इज द state borrowings by different state in terms of crores. तो फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा कंपेयर किया गया है अब तक के पीरियड के अकॉर्डिंग और उन स्टेट्स के नाम इसमें नहीं है जिन्होंने अभी तक किसी भी तरह की बोरोइंग नहीं की। तो जिन स्टेट्स के नाम नहीं है यू कैन एंटिसिपेट कि उनकी बोरोइंग अभी नहीं हुई है इस फिस्कल ईयर में। एंड डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू मक अप दिस डेटा, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4, हाउसिंग रिवाइवल टू बूस्ट इकोनॉमिक सेंटिमेंट FM। थर्सडे को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे रियल स्टेट जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल्ड कंडीशन में पड़े हुए हैं अगर उनको रिन्यू किया जाता है बाय डिफरेंट मोड्स दैट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स इन द कंट्री। तो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशनरी वेव्स ब्लो कर रही हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री टू डिफरेंट स्टेट, तो हेल्थ केयर सेक्टर को टारगेट करने के बाद नाउ हाउसिंग रिवाइवल इज इम्पॉर्टेंट टू बूस्ट द इकोनॉमिक सेंटिमेंट एज पर आवर फिनेंस मिनिस्टर। तो उनका ये कहना है कि जो कंट्री फिलहाल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है जो कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से उसको सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया जा सकता है अगर जो स्टॉल पड़े रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिन्यू कर दिया जाए, उनको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनके वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज एनपीए की कैटेगरी में आ गए हैं उनकी बुक को भी इम्प्रूव किया जा सकता है एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर एट अ वर्चुअल इवेंट। एक वर्चुअल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जहां पर उन्होंने एक पर्टिकुलर रियल स्टेट प्रोजेक्ट जो कि बहुत टाइम से मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट था जो कि बहुत टाइम से स्टॉल पड़ा था वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और उसको बायर्स को हैंड ओवर किया। तो उसी का एग्जाम्पल लेते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। और अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें कौन सा प्रोजेक्ट था, इट वाज द रिवाली पार्क प्रोजेक्ट जिसकी बेसिकली गवर्नमेंट की जो सेंट्रल स्पेशल लिक्विडिटी विंडो आई थी, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग दैट इज स्वामी फर्स्ट, उसके अंडर में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया और नाउ दिस प्रोजेक्ट इज रेडी एंड handed over to the buyer. And this is the first residential project that has been completed under the special window for affordable and mid-income housing scheme of center government जो कि 2019 में स्टार्ट हुई थी। प्रोजेक्ट जो 2019 में स्टार्ट हुआ था और फंड रेजिंग की वजह से फंड के
क्रंच की वजह से, फंड स्टक की वजह से पर्टिकुलर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था ये स्टॉल हो गया था। और जो गवर्नमेंट की स्पेशल विंडो क्रिएट हुई थी, लिक्विडिटी विंडो फॉर दोज प्रोजेक्ट, उससे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंडिंग हुई और प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ। तो जो ये स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने मिड इनकम हाउसिंग फैमिलीज़ के लिए और अफोर्डेबल होम्स की, उसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर फंड को प्रोजेक्ट किया गया था और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंड किया गया था। तो इससे क्या हुआ, जो कि इतना भी कैपिटल जो इसमें स्टक हो गया था, इसी तरह के और भी रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें इस तरह का फंड जो है वो स्टक होगा, और वो बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज की कैटेगरी में, उनके लोन बुक में दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी कैटेगराइज और मे बी कैटेगराइज्ड एज एनपीए और बैड लोन्स। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को रिविजिट किया जाता है, रिवाइव किया जाता है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, so that may be good for boosting the economic activity at one hand. On the other hand, it will also improve the financial condition of banking or non-banking industry as per FM सीतारमन। और जो अलाइड बेनिफिट्स हैं अगर उनकी बात करें तो डेफिनेटली इट विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, और इससे जो स्टील, सीमेंट और जो भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रियल स्टेट में यूज़ होती हैं, उनके रॉ मटेरियल में जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन सब इंडस्ट्रीज़ को भी एक इम्पटस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जितने भी स्टॉल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, अगर उसको रिवाइव किया जाए तो स्टील, सीमेंट, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इन सारे सेक्टर को एक साथ रिवाइव किया जा सकता है एज पर आवर फिनेंस मिनिस्टर। तो लेट्स सी, हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इस तरह की कोई और स्कीम जल्द ही लेकर आए जो स्टॉल पड़े रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिविजिट करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एप्पल इंडिया लॉग्स रिकॉर्ड क्वार्टर। तो इंडिया में जनवरी से मार्च के क्वार्टर में, दैट इज Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, एप्पल इंडिया हैज़ recorded the highest sale of PC and smartphones। शिपमेंट को देखते हुए, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो एप्पल के शिपमेंट्स आए वो बहुत ज़्यादा आए, और उसको देखते हुए कहा जा सकता है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी जिएंट एप्पल रजिस्टर्ड रिकॉर्ड बिजनेस इन टू Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। और not only in mobile phone or smartphone but in all categories including PC, iPad and other key product categories। प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट के सेगमेंट में एप्पल ने बहुत अच्छी ग्रोथ रजिस्टर करी है इंडिया के केस में। और अभी तक अगर हम एप्पल की परफॉर्मेंस की बात करें तो एप्पल यूज टू बी द फ्रिंज प्लेयर इन ऑल की कैटेगरीज लाइक स्मार्टफोन्स, नोटबुक, टैबलेट्स, पीसी, but with the last quarter record breaking performance, the brand has established itself in the country price sensitive consumer electronic market। And all these are the headlines or highlights, that number 1 in premium handset space, number 6 in overall smartphone market, number 4 in consumer PC segment, number 2 in tablet market, and approximately 336% growth Apple has achieved in case of PC shipment in the Q4 of financial year 21, which was approximately 4.5 times of the industry growth rate। So that's a very good for Apple. Probably Apple is investing more in electronic devices in case of India। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेकेंड कोविशील्ड डोज 12 to 6 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ने पैनल के रिकमेंडेशन के बाद जो सेकेंड डोज है कोविशील्ड की, उसके बीच में गैप को इंक्रीज कर दिया है और रखा है कि अब ये गैप 12 से 16 वीक का होगा, जो कि पहले से 4 से 6 और फिर 8 वीक हुआ। नाउ इट इज़ 12 to 16 वीक्स। अब इस पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग दिस इंटरवल, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दिस इंटरवल गवर्नमेंट शुड एक्नॉलेज द शॉर्टेज। कुछ का ये कहना है कि जो डेटा आ रहा है यूके से, उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर 2 डोजेस के बीच में 12 से 16 वीक का डिफरेंस रखा जाता है, इंटरवल रखा जाता है या गैप रखा जाता है, तो इससे इम्यूनिटी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और ये जो गैप है दैट इज़ मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू द 4 to 8 वीक गैप्स।
So we can say our government is actually saying that this particular move is based on additional data, particularly real life experience of UK, that is showing increased advantage with higher interval between the shots. तो ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि जो यूके से डेटा आ रहा है रियल टाइम डेटा, उसके बेसिस पर ही पैनल ने ये रिकमेंडेशन दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैनल की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है और इमीडिएटली स्टेट्स को भी डायरेक्टिव्स दे दिए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का एडहेरेंस इम्प्लीमेंट करें। अब स्टेट जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेकेंड डोज दी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया इज एक्सपेक्टिंग ओवर 2 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन बाय द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। तो सितंबर अगस्त तक इंडिया में प्रॉबेबली जो शॉर्टेज है वैक्सीन की वो शायद कम हो जाए। और जैसा कि हम सभी को पता है, स्पुतनिक को भी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिल गया एंड दैट इज़ मोर लाइकली कि नेक्स्ट वीक तक स्पुतनिक इंडिया की मार्केट को हिट कर दे। तो स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 3 अभी वैक्सीन जो है वो इंडिया में अप्रूव है। अभी के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन एडमिनिस्टर्ड हो रही है इनटू मास इनोकुलेशन प्रोग्राम और नेक्स्ट वीक तक स्पुतनिक भी इंडिया में अवेलेबल होगी इंडिया की मार्केट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑटो डेबिट पेमेंट बाउंस रेट इंक्रीजेस अगेन इन अप्रैल। कोविड का इम्पैक्ट या कोविड की सेकेंड वेव और या पैंडमिक का इम्पैक्ट, जो ऑटो डेबिट पेमेंट रेशियो है, जो ऑटो डेबिट पेमेंट रेट है, उसमें फिर से दिखाए अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, दैट इज NACH डेटा, अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 34.05% ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस जो थे वो फेल हुए हैं इन कंपैरिजन टू 32.76% इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में यही परसेंटेज 32.76 था, जो कि अप्रैल में बढ़ के 34.05% आ गया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो इन अप्रैल of the 85.4 million auto debit transaction initiated, 56.3 million were successful while 29.08 million were failed. जनरली इसको हम बोलते हैं, अगर अनसक्सेसफुल ऑटो डेबिट रिक्वेस्ट नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के डेटा में होता है तो देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म वी जनरली रिफर दिस अ बाउंस रेट। तो हम कहते हैं बाउंस रेट जो है वो अप्रैल के मंथ में बढ़ा है इन कंपैरिजन टू द मार्च में भी था 32 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली, जो कि बढ़ के 34 पॉइंट आ गया है। और इसका एक सीधा रीज़न कोविड-19 पैंडेमिक है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, पेयर्स हैं, उनमें फ़ंड अवेलेबिलिटी नहीं है। हाउसिंग हॉस्पिटल सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो सेविंग्स हैं कंज्यूमर्स की वो पूरी वॉश आउट हो गई हैं। इवन कुछ कंज्यूमर्स की अगर बात करें, पब्लिक की बात करें, तो वो डेट की सिचुएशन में हैं, जिसकी वजह से ये ऑटो डेबिट रिक्वेस्ट जो होती हैं बेसिकली लोन रीपेमेंट के लिए LIC या किसी SIP की स्कीम में आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटी अवेल करते हैं कि मंथली आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होता रहे। RD के केस में भी ऐसे ही होता है, LIC की पॉलिसी के केस में भी ऐसा ही होता है, अगर आपने कोई SIP लिया है तो उसमें भी ऐसे ही है। तो इस तरह के कई ऑप्शंस होते हैं। लोन रीपेमेंट के केस में भी ऐसा होता है, ऑटो डेबिट की आप फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं। बट एज अ पेयर यू नीड टू इंश्योर दैट सफिशिएंट बैलेंस इज देयर इनटू योर अकाउंट। और कोविड-19 की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको अवेल करने में बहुत सारे कंज्यूमर्स की सेविंग चली गई हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है सफिशिएंट। इवन कुछ कंज्यूमर तो डेट की सिचुएशन में आ गए, जिसकी वजह से अगर आप कहा तो हेल्थ केयर सेक्टर में RBI ने लेंडिंग की फैसिलिटी भी रिसेंटली ओपन करी है। इवन पेशेंट्स के लिए भी अगर वो चाहें तो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, और कमर्शियल बैंक्स को भी डायरेक्ट किया है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स को पेशेंट को लोन प्रोवाइड करें। दैट पर्टिकुलर लोन विल बी ट्रीटेड एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। और अगर पिछले साल के डेटा की बात करें तो द डिक्लाइन इन द ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन हैड पीक्ड इन जून लास्ट ईयर व्हेन द फेल्योर रेट वाज 44%। तो जून के मंथ में अगर आपको याद हो नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था उस ड्यूरेशन में, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, जिसकी वजह से भी पिछले साल जून के मंथ में हाईएस्ट बाउंस रेट रहा था, दैट इज़ 45%। ऑल्दो अप्रैल में उतना अभी नहीं है, बट इट इज़ considerable that it is increasing.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टेट प्रपोज नेशनल बिड टू इम्प्रूव इम्पोर्ट वैक्सीन। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ट्रैक चेंज करते हुए या अपना जेस्चर या अपना ओपिनियन चेंज करते हुए ये कहा है कि नाउ सेंटर गवर्नमेंट शुड गो फॉर सिंगल नेशनल टेंडर एंड नेशनल पॉलिसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ वैक्सीन। स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन के लिए ट्रेडिंग या जो टेंडर है वो नहीं फाइल करेंगे और सीधे डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट नहीं करेंगे। रादर देन सेंटर गवर्नमेंट should make any national policy so that a single national tender can be filed or state government will get the vaccine available at their doorstep। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबिलिटी इंश्योर करानी है तो सेंटर गवर्नमेंट को सिंगल नेशनल टेंडर फाइल करना चाहिए, जैसे कि मे बी ये चांसेस हैं कि कम कॉस्ट पर वैक्सीन अवेलेबल होगी अगर सेंटर गवर्नमेंट एक सिंगल नेशनल टेंडर फाइल करती है। और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर टेंडर फाइल करते हैं तो उनके लिए ये कॉस्टली प्रोसेस होगी। इनिशियली जब सेंटर गवर्नमेंट ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन ओपन कर दी थी तो उसके इमीडिएटली बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट से टेंडर जो ग्लोबल बिड्स हैं वो इनवाइट करी थी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन। The latest to do is the Municipal Corporation of Greater Mumbai, which has sought 10 million COVID-19 doses from international market। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर की डिफरेंट स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से, उसमें ये नेगोशिएशन किया गया है कि सिंगल टेंडर फाइल करें अंडर वन नेशनल पॉलिसी। उससे क्या होगा, हर स्टेट को एक पर्टिकुलर सेम रेट पर वैक्सीन अवेलेबल होगी। अभी क्या है, स्टेट्स आर इनवाइटिंग टेंडर ऑन देयर ओन एंड एवरी स्टेट विल गेट वैक्सीन एट अ वेरी डिफरेंट रेट and that may leads to unhealthy competition and end up profiting for the foreign vaccine manufacturer। तो इसके लिए कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है। लेट्स सी whether this request will be accepted or not। So that's all for today, students। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram। And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below। Please like, share and subscribe। Thank you।